Hello friends, you know that very well in the last lecture, that means in moving charge and magnetism part 14, very IMP, and in part 14 we discuss supreme point about ammeter, voltmeter. You know that galvanometer is given to you. So first of all we will revise these 3 points, galvanometer, then how can we obtain ammeter from galvanometer, and then finally voltmeter, and then we'll start the today's lecture. Today we would like to think about only and only JEE NEAT. So you can see I have written here JEE NEAT special, ammeter, voltmeter and galvanometer. So friends, without wasting time, we start the story. Moving charge and magnetism part 15, special case of JEE NEAT, very IMP for those students who are thinking about competitive exam. तो मुझे इस लेक्चर का हर एक क्वेश्चन जो भी अपन लोग इधर सोल्व करने वाले हैं वो होमवर्क में 2 टाइम्स लिख के सबमिट करवाना है, प्लस ऑल कंसेप्चुअल पॉइंट. So without wasting time, first of all we'll think about revision. So you know that this is the principle of galvanometer. Whenever torque acting on galvanometer coil due to magnetic field becomes equal to restoring torque. So magnetic torque, it is NIAB because sin theta 90, you know that because of uniform radial magnetic field. Restoring torque K phi, this K is called torsional constant of the spring. So this is the principle, very IMP. From this equation, if you take the ratio of phi to I, so phi upon I, it is called deflection of coil per unit current. You can see what do you mean by phi by I? It is called deflection per unit current. So this deflection per unit current, it is called current sensitivity. Very IMP, current sensitivity. Last time we discussed, what do you mean by current sensitivity? Current sensitivity, that means the deflection of galvanometer coil per unit current, it is called current sensitivity. And if your galvanometer is highly sensitive, that means if you pass very small magnitude current but galvanometer shows deflection, large scale deflection for very small magnitude current, then you know that very well galvanometer is very high sensitivity. Okay friends, so current sensitivity, that means deflection per unit current. So from this equation phi by I, so it becomes NAB upon K. You can see that NAB upon K. This is the formula for current sensitivity. So now we have to think about the another type of sensitivity. It is voltage sensitivity. You can see voltage sensitivity, that deflection per unit voltage, it is called voltage sensitivity. Okay, so voltage sensitivity, that means deflection upon voltage. So here already deflection phi by V, already you know that V is equal to IR. This is the formula as per Ohm's law. V is equal to IR, and already you can see phi by I. What is the phi by I? Phi by I already NAB upon K. So instead of phi by I have written here NAB upon K into R. So this is called formula for voltage sensitivity. But you can see voltage sensitivity can also be represented in the form of current sensitivity. Check it, phi by I, it is your current sensitivity, NAB upon K, current sensitivity. So another formula of voltage sensitivity is equal to current sensitivity upon R. So there are two formulae for voltage sensitivity. Number one, very easy, deflection per unit voltage, that means NAB upon KR. And number two, voltage sensitivity is equal to current sensitivity upon resistance. So current sensitivity upon resistance, supreme. So friends, these all points very IMP. Already we have discussed current sensitivity. Today we have also discussed voltage sensitivity, very important for JEE NEAT. So friends, now you know that very well this Dhum series. It is, you can see that IG by I, IS by I, resistance of ammeter, वो अपन लोग बाद में डिस्कस करते हैं. First of all, we have to think about one numerical. You can see there are two moving coils, galvanometers are given, M1 and M2. Moving coil 1, moving coil 2. This is resistance, number of turns,
area of coil, magnetic field. Resistance for second, number of turns, area of coil and magnetic field. Okay, so now we would like to find the ratio of current sensitivity for 2 to 1. सेकंड कॉइल और फर्स्ट कॉइल का करंट सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है. सो करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 upon current sensitivity of M1. Here a current sensitivity, check it, NAB upon K. K here ideal for both types of coils, don't worry. तो K की वैल्यू कॉमन है, so that's why I have not written here. So current sensitivity of M2, एक K हटा दो, then what's the answer? NAB. So here N2, A2, B2. Current sensitivity of M1, N1, A1, B1. All values are given, don't worry. Set up the values, answer 1.4. Now they have asked the question about voltage sensitivity of M2 to voltage sensitivity of M1. So voltage sensitivity, this is voltage sensitivity. It is NAB upon K into resistance. K is common for both types of coil. So NAB upon R. So M2 A2 B2 upon N1 A1 B1. But here resistance already in denominator. So that's why here 2 to 1. So here 1 to 2. This is, you can see that interesting point. So I have made here round all values with him, set up the values and simplify, you will get answer 1. So friends, this is very easy numerical but based on two formulae, and we have discussed, this is, you can see that your 10th number unsolved textbook NCERT 10th number. So very IMP ये हमने बाकी रखा था because of it is associated with this, sorry, because of this topic. Now friends, you can see we would like to think about here, this is the galvanometer. Now we would like to think about ammeter and voltmeter. Okay, so now I will revise the all very important points about ammeter and voltmeter. Now galvanometer is given to you and we would like to obtain ammeter. How can you convert galvanometer to ammeter? Always you would like to convert galvanometer into the form of ammeter, then only one point is required, shunt. You know that very well. Shunt is a very low value resistor and it is always connected in parallel with galvanometer. If you connect shunt in parallel with galvanometer, then you can obtain ammeter. Similarly, we would like to obtain voltmeter, then you have to connect series resistor. Series resistor is a very high value resistor and series resistor always connected in series with galvanometer. तो galvanometer के साथ लो वैल्यू रजिस्टर शंट को पैरेलल में कनेक्ट करो तो बन गया एमीटर, और यही गैलोमीटर के साथ हाई वैल्यू रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करो तो बन गया वोल्टमीटर. मगर कितने ओम का शंट और कितने ओम का सीरीज रजिस्टर कनेक्ट करना है उसके फॉर्मूला भी हमने 14 में डिराइव किए हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर शंट. You know that shunt, you know that very well. It is the resistance of galvanometer multiplied by Ig. What do you mean by Ig? ये कमाल Ig बहुत ही धूम मचाने वाला. Ig that means current measuring capacity of galvanometer. And I can say the value of current for which galvanometer shows full scale deflection. It is called its current measuring capacity. अगर मैं galvanometer में से 5 मिली एम्पियर करंट पास करूं और गैलोमीटर जूम से डिफ्लेक्स हो जाए फुल स्केल, ये 0 पॉइंटर पे था सीधा इधर आ जाए, मतलब गैलोमीटर का ये जो 5 मिली एम्पियर है वो बन गया उसका करंट मेजरिंग कैपेसिटी. करंट मेजरिंग कैपेसिटी दोस्तों क्या बता रहे चिल्ला चिल्ला के, अगर आपने गैलोमीटर में से उसकी जो करंट मेजरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा करंट पास किया मतलब नया गैल्वेनोमीटर लिया. You know that this slogan. So this is the formula shunt Rg into Ig upon I minus Ig. What do you mean by I? I is the maximum current measured by ammeter. Rg is the resistance offered by galvanometer. Similarly, what's the formula of series resistor Rs? It is always connected in series to obtain voltmeter from galvanometer. Its formula V upon, you know that very well, Ig minus Rg. ये सभी फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए. मैंने कल जो लास्ट 14 पार्ट में जो टेबुलर फॉर्म दिया था वो आपके दिमाग में है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. अब अपन लोग शुरू करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन. मैं जितने क्वेश्चन करवाता हूँ उतने कर दो, मतलब मोस्ट ऑफ वेराइटीज कवर. सो फ्रेंड्स बी रेडी एंड
always we can say that textbook, notebook and pen pencil required whenever you are dealing with JEE NEET session. क्योंकि अपना फंडा ऐसा है, सिर्फ वीडियो लेक्चर नहीं देखना है आपको, मैंने बताया है क्या करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको मैं दूं, यू हैव टू सोल्व योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द पोजिंग ऑफ वीडियो को पॉज करो और अपने आप जिसे कह सकते सोचो। तो मैं पहला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, मोस्ट आईएमपी, सभी क्वेश्चन बेस्ट ही है, डोंट फॉरगेट। A moving coil galvanometer of resistance, a moving coil galvanometer of resistance 100 ohm, अपने पास कोई गैलोमीटर उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, इज यूज्ड एज एन एमीटर, अपने को यूज करना है एज एन एमीटर यूजिंग अ रेजिस्टर ऑफ 0.1 ओम। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर? It is Rg, here Rg 100 ohm। अब एक गैलोमीटर में से हमें बनाना है मीटर। क्या करने का, दिमाग तुरंत चलना चाहिए। Whenever gallanometer is converted in the form of ammeter, then what's the requirement? गैलोमीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है शंट, very low value resistor shunt, it is given। So here ammeter using a resistance of 0.1 ohm, that means the value of shunt 0.1 ohm. So what's your target? Now the maximum deflection current in the galvanometer is 100 microampere। देखो maximum deflection current, this is the word, the maximum deflection current for galvanometer, it is 100 microampere। So what do you mean by this 100 microampere? It is your current measuring capacity for galvanometer। मैक्सिमम करंट जिसके लिए डिफ्लेक्शन मिले फुल, इसको कहते हैं Ig। सो Ig आल्सो गिवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम करंट इन द सर्किट सो दैट एमीटर शोस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड मिनिमम करंट फॉर व्हिच एमीटर शोस, find the minimum current in the circuit so that ammeter shows maximum deflection। So this is, you can see that your target, chalo this is your target, find out, find the minimum current for which, see you are here, minimum current for which ammeter shows maximum deflection। Take your time, pause the video and try to solve it। ओके आपको क्वेश्चन जो पूछा है मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 100 ओम हियर, ओके, शंट गिवन 0.1 ओम, Ig गिवन, योर टारगेट टू फाइंड I, यू हैव टू फाइंड द करंट फॉर व्हिच एमीटर शोस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। यानी कि देखो इसके वर्डिंग पकड़ने के काफी स्टूडेंट्स को इस जो डिपार्टमेंट में यानी गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर में क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा हटके होता है और उसमें फंसते हैं। For example, in this question they have asked to find the minimum current for which ammeter shows maximum deflection। अब हमारे पास था गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर में से मुझे बनाना है एमीटर। So obviously to obtain ammeter from गैल्वेनोमीटर, you know that shunt is connected with it in parallel। तो अब आपका ये गैल्वेनोमीटर, जैसे ही गैल्वेनोमीटर के साथ शंट कनेक्ट हो, गैल्वेनोमीटर को भूल जाओ। अब ये बन गया आपका एमीटर। अब ये मीटर यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताएगा, मतलब अपन लोग सपोज मैं कहता हूँ कि 5 एम्पियर करंट पास करे तब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताता है। अब गैल्वेनोमीटर भूल जाना, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मतलब ए मीटर, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए मीटर, दैट मींस ए मीटर जो बना अभी गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को कनेक्ट करने के कारण जो ए मीटर बनता है, वो जो मैक्सिमम करंट रिप्रेजेंट करे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करे, वही जिसे कह सकते हैं कि उसका मैक्सिमम करंट मेजरिंग कैपेसिटी बन गई। वापस मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए वापस, गैल्वेनोमीटर अब भूल जाना है। गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट कैपेसिटी इतनी थी 100 माइक्रोएम्पियर। अब हमें एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन उल्टा पूछते हैं, क्या कि कितना शंट चाहिए ताकि अपन लोग मैक्सिमम इतना करंट मेजर कर सके क्वेश्चन, मगर इसमें उल्टा पूछा है कि अगर इतना शंट कनेक्ट किया जाए ये गैल्वेनोमीटर के साथ
0.1 ओम का शंट कनेक्ट किया जाए तो जो ए मीटर बनेगा वो मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर पाए, यानी आपको पता चला we have to think about simply I. We would like to find I in this equation. So we know that shunt S is equal to this formula Rg into Ig upon I minus Ig. Okay. In this equation, set up the values. Shunt yani Rs. What is the value of Rs? 0.1. Rg. What is the value of Rg? Resistance of galvanometer 100 multiplied by 100 microampere. So 100 into 10 raised to minus 6 because of micro upon I your target Ig 100 into 10 raised to minus 6. Simplify this portion, find out the value of I and tell me the answer. If you simplify and solve it, then your answer 100.0 milliampere. इतना आंसर आएगा. मोस्ट आईएमपी पूरा क्वेश्चन पपुड़िया टाइप, बट जो वर्डिंग है वो याद रखने का है. सिंपल स्टोरी पूछने का अंदर जैसा था कि इतना हम शंट गैलोमीटर के साथ कनेक्ट करें. अब गैलोमीटर बन गए ए मीटर, तो ए मीटर अब कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर पाएगा. 100 into 0.1 मिलीएम्पियर इतना करंट मेजर कर पाएगा. सुपर. तो देखो पहले गैलोमीटर, ये कमाल है सन का. पहले गैलोमीटर की मैक्सिमम करंट मेजरिंग कैपेसिटी, अब देखो मैक्सिमम करंट मेजरिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 100 माइक्रोएम्पियर है. उसमें से हमने बढ़ा के बना दिया 100 मिली एम्पियर सुप्रीम. तो ये जादू है सन का. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी आईआईटी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन, यू कैन से. चलो वन मोर. सो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन शुरू हो गई है. ट्राई इट. ये क्वेश्चन वापस अपने आप सोल्व करो. ओके. और अपने आप किया हुआ है तो वेरी गुड. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट वन मोर. Concentration required. Now next question, very IMP for us, so be alert about it. Okay, because it is one of the most IMP question based on numerical value. न्यूमेरिकल वैल्यू वाले फंडे कुछ लोग जानते होंगे, जिसको पता है वो just a minute. Okay, so now we have to think about one more. It is also, we can say that the supreme one, but you have to apply your logic based on integer type question. So a galvanometer gives full scale deflection. Check the data. A galvanometer, here data, galvanometer shows full scale deflection with 0.006 ampere current. For this value of current 0.006 ampere. ओके, एक जीरो ज्यादा हो गया तो कम कर देते. 0.06 एम्पियर करंट, इस करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलते हैं. फुल स्केल डिफ्लेक्शन. ओके, सो देयर इज अ गैलोमीटर. फॉर दिस वैल्यू ऑफ करंट इट शोस फुल स्केल डिफ्लेक्शन बाय कनेक्टिंग इट टू अ 4990 ओम रेजिस्टेंस. बाय कनेक्टिंग इट टू 4990 ओम रेजिस्टर, it can be converted into voltmeter. It can be converted into voltmeter which can measure the value of voltage from 0 to 30 volt. देखो पहले गैलोमीटर था, उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये करंट पे मिल रहा है, उसके साथ हमने इतना रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया तो अब ये बन गया वोल्टमीटर. और वोल्टमीटर इतना मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर सकता है 0 से 30. ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. if connected to 2n, देखो एक क्वेश्चन स्टार्ट. 2n upon 249 ओम रेजिस्टर. पहले 4990 के साथ कनेक्ट किया था, अब 2n upon 249 ओम रेजिस्टर, then it becomes an ammeter. then it becomes an ammeter. अब बन गया हमारा वोल्टमीटर में से ammeter. And what is the maximum current range for measuring range of this voltage? This ammeter can measure current from 0 to 1.5 ampere. Okay,
then what is the value of n? This is the question. वापस क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन इसलिए अच्छी तरह दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके सोल्व कर सको। मैं ही क्वेश्चन दूर मैं ही सोल्व करवाऊँ उसका मजा नहीं है। सो देयर इज अ गैलोमीटर। What is the we can say the current for this value of current galometer says full scale deflection। इतना करंट पास करो गैलोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है। अगर इस गैलोमीटर के साथ इतना रजिस्टर कनेक्ट किया जाए, मुझे पता नहीं है सीरीज पैरेलल वो आपको देखना है, तो गैलोमीटर का वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है और वो वोल्ट मीटर 0 to 30 वोल्ट का वोल्टेज मेजर कर सकता है। अगर ये 49990 ओम के बदले अगर ये रजिस्टर को बदले इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए, गैलोमीटर के साथ इतना रजिस्टर कनेक्ट किया जाए, तो ये बन जाता है ए मीटर और वो ए मीटर इतना करंट मेजर करता है 0 to 1.5। तो ये n की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर आई कैन से। अप्लाई योर लॉजिक एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके सो अपन लोग सॉल्व करते चलो। आपने ट्राई किया होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी फॉर दिस वैल्यू ऑफ करंट 0.06 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर, गैलोमीटर shows full scale deflection। So you know that the value of current for which galometer shows full scale deflection 0 to maximum, this value of current is called current measuring capacity। So this is simply Ig for galvanometer। तो गैलोमीटर का IG दे दिया। अब इतना रेजिस्टर हम कनेक्ट करते हैं तो बन जाता है ए मीटर सॉरी गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर। तो ऑब्वियसली गैलोमीटर में से वोल्ट मीटर बनाना हो तो ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर। उसके साथ ये रेजिस्टर हमें किस तरह कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में या पैरेलल में? ऑब्वियसली वोल्ट मीटर बनाना हो तो सीरीज। तो ये बन गया आपका सीरीज रेजिस्टर 4990 ओम। अब ये अल्टीमेटली ये पूरा कॉम्बिनेशन चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहा है, मैं वोल्ट मीटर हूं और ये वोल्ट मीटर मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है 30। देखो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन उसमें कनेक्टिंग लिंक होती है, बस ये लिंक ढूंढनी है। मैं आपको अभी पता चल जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और एक हिंट दे रहा हूँ। अगर अपने पास ये बन गया वोल्ट मीटर, देखो दिस इज योर वोल्ट मीटर, रेडी, दिस इज योर वोल्ट मीटर। सो फ्रेंड्स what is the formula of we can say that resistance, series resistance to convert galometer to voltmeter? ये रहा फॉर्मूला, इधर देखो इतना रेजिस्टेंस अपन लोग कनेक्ट करेंगे। सो RS इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। बस रुक जा, बराबर ये अपना इतना रेजिस्टर हमने कनेक्ट किया है, तब जो वोल्ट मीटर बना गैलोमीटर में से जो वोल्ट मीटर हमारे पास है वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर कर सकेगा 30 वोल्ट। अब ये लोग कहते हैं कि ये रेजिस्टर के बदले ये रहा गैलोमीटर वापस, इंस्टेड ऑफ दिस 4990 ओम रेजिस्टर वी हैव टू कनेक्ट 2n upon 249 ओम। बट इन हाउ और आई कैन से दैट इन व्हिच मैनर? ऑब्वियसली गैलोमीटर में से वोल्ट मीटर नहीं बना रहे, गैलोमीटर में से बना रहे ए मीटर। तो ए मीटर बनाने के लिए गैलोमीटर के साथ रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और ये जो पैरेलल होगा वो होगा अपना शंट और उसका रेजिस्टेंस ये रहा 2n 249। तो ये बन गया आपका क्या ए मीटर और ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर करेगा 1.5। तो ए मीटर बनाने के लिए गैलोमीटर के साथ हमने शंट कनेक्ट किया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस और फॉर्मूला फॉर शंट? ये रहा शंट का फॉर्मूला RS, इट इज RG मल्टीप्लाई बाय IG I माइनस IG। अब दोस्तों लाइट हो जाए तो देखो ये मैंने बताया कनेक्टिंग लिंक, दोनों मीटर्स आपके सामने, वोल्ट मीटर ए मीटर। पहले गैलोमीटर में से वोल्ट मीटर बनाया बाय कनेक्टिंग सीरीज रेजिस्टर, देन गैलोमीटर इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए मीटर बाय कनेक्टिंग शंट। मगर आप देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, अपना टारगेट इधर पड़ा है 2n इधर। तो मैं पहले वैल्यू रख देता हूँ RS की जगह। सो RS इज इक्वल टू 2n अपॉन 249 इज इक्वल टू 249 इज इक्वल टू RG into IG upon I minus IG। Okay, now if you analyze very carefully, this numerical get completed very smoothly or completed we can say that very fast if you idea about RG। देखो ये कमाल है, IG already with you,
I 1.5, Ig already with you. अगर Rg मिल जाए, you can see Rg your requirement, then you can easily find M. इसीलिए लोगों ने पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी. मैंने कितनी बार बोला जेडब्ल्यू नीट में एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करो. टारगेट यहाँ पे दिया है, ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है. सो बाय यूजिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन वी कैन इजीली फाइंड आरजी. चेक इट. आर इज गिवन, यस 4990. What is the maximum voltage which can be measured by this voltmeter? It is 30 volt. Ig already with us. So these three values with you, so you can easily find Rg. Set up the values and you will find value of Rg. मैंने इधर सोल्व किया 10 ओम. अगर आपका 10 ओम आता है Rg तो वेरी गुड. Now we have to use 10 ohm here. So 10 ohm, Ig, all values with you. Simplify. You will get n is equal to 5. Most IMP एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछेंगे जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं देंगे. ऑब्वियसली 0 to 9 के बीच में आंसर आता होगा, जैसे इधर आंसर है 5. सुपर क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन को खास ध्यान में रखना. और क्यों रखना वो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इसको जरा ध्यान में लेना. बिकॉज इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन जेडब्ल्यू एडवांस 14 2000 जिसे कह सकते 14 एंड 2014 और एडवांस में पूछा हुआ. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट मेन. मेन का भी बात एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है. यू कैन सी दैट. सो वी हैव डिस्कस जेडब्ल्यू एडवांस 2014. पहला सेगमेंट आरजी देगा, वो आरजी को दूसरा सेगमेंट में यूज करके सॉल्व करना है. मास्टरपीस. एनालाइज एटलीस्ट वन टाइम. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी थिंक अबाउट वन मोर. आज बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करने के हैं और टर्न बाय टर्न जिसे कह सकते हैं कि फॉर्मूले एप्लीकेशन देखते जाएंगे अपन लोग. सो नाउ वी थिंक अबाउट वन मोर. देखो लॉजिक क्लियर करने का फंडा है कि जितने क्वेश्चन चले उसको अपने आप ट्राई करो और वापस सोल्व करो. और अपन लोग ने क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किए ताकि मोस्ट ऑफ कंसेप्ट इधर अप्लाई हो, वो हो जाए इधर ही. ओके, सो नाउ थिंक अबाउट वन मोर. तो मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको सही में आना चाहिए क्योंकि इसका शॉर्टकट भी मैंने लास्ट पार्ट में दे दिया है. सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ ओके रेडी. चलो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी. जस्ट अ मिनट क्योंकि इधर सब मैंने जैसे जैसे निकाला हुआ दैट मींस. ओके चलो. नाउ there is we can say that one galvanometer is given and what is the importance of this galvanometer? Galvanometer is converted in the form of ammeter. There is, you can see that an galvanometer and this galvanometer is converted in the form of ammeter. So this ammeter reads up to 1 ampere. This ammeter reads up to 1 ampere. इतना करंट मेजर कर सकता है. ओके, नाउ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. ये मैं बताऊंगा ना, इतना बोला है. इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस is 0.81 ohm. If its internal resistance is 0.81 ohm, then to increase the range up to 10 ampere. You can see that here up to 10 ampere, then the value of required shunt is blank. अभी ये मीटर है वो 1 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है. वो 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक की रेंज बढ़ानी हो तो कितना शंट चाहिए. दिस इज आल्सो आस्क्ड इन JEE 2003. सो अप्लाई योर लॉजिक एंड ट्राई टू सॉल्व इट. स्टार्ट. Okay friends, so now we would like to solve it. Very easy. You can see your data is given. Here check, you can see that these 2 points. Initially whatever the ammeter with us, it can measure 1 ampere current. And we would like to improvise this current value from 1 to 10.
यानी जो एमीटर हमारे पास है उसकी रेंज, करंट मेजर करने की रेंज हमें कितना गुना करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर बाय n टाइम्स। याद करो, कल का टेबल जिसको पता होगा उसको पता होगा। सो टू मेक और टू इंक्रीज range of galvanometer or ammeter by n times, what is the required shunt? So formula for required shunt S RS is equal to, याद करो हमने कल डिस्कस किया था, और वो था जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग देखे तो RG अपॉन n माइनस 1। कल हमने ये शॉर्ट कर दिया था, where n is your range। तो ये RG 0.81, अपन लोग रेंज कितना गुना कर रहे हैं, 1 से 10 एम्पियर, मतलब 10 गुना बढ़ा रहे हैं। सो n हियर 10। सो सिंपली टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर बाय 10 टाइम्स व्हाटएवर द रिक्वायर्ड शंट, सो 0.81 10 minus 1 9, so 0.09। you can see this is your answer। but most IMP question super JEE 2003 एनालाइज। देखो शॉर्टकट सब याद रखने के हैं। सो नाउ यू थिंक अबाउट वन मोर। पहले थोड़ा ए ग्रुप वालों के लिए रहते, बाद में अपन लोग डिस्कस करते हैं थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन फ्रॉम बी ग्रुप डिपार्टमेंट। ओके, सो नाउ बी रेडी फॉर नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन। नाउ वन ऑफ द सुप्रीम क्वेश्चन वी वुड लाइक टू डिस्कस। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको अब सोल्व करना है, हो सके तो बेहतरीन ट्राई अप्लाई करके करने का है। ओके, सो व्हेन करंट ऑफ, क्वेश्चन में दे रहा हूं, व्हेन करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, क्वेश्चन स्टार्ट, व्हेन करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर having a coil of resistance 15 ohm। what is the resistance of galvanometer? 15 ohm, or 5 milliampere current is passing through galvanometer। okay, then it shows full scale deflection। इतना करंट पास करते हो, गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता देता है, मतलब आप समझ गए क्या है। ओके, देन the value of the resistance to be put in series, the value of the resistance to be put in series with the galvanometer to convert it into voltmeter। अब इस गैल्वेनोमीटर में से मुझे वोल्टमीटर बनाना है जिसका रेंज, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस वोल्टमीटर का रेंज है 0 to 10 वोल्ट। तो कितना रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करना पड़े, अप्लाई। तो आपने वीडियो पॉज करके सोल्व किया होगा। You can see that what happened here, what is the current passing through galvanometer, 5 milliampere। for this current galvanometer shows full scale deflection। so you know that the value of current for which galvanometer shows full scale deflection, it is called its current measuring capacity Ig। तो अपने पास Ig है, resistance of galvanometer Rg already with you, maximum volt अपने को V। so what is the formula of a series resistance? और series resistor RS, sorry capital RS, here a shortcut, यानी कि formula V upon Ig minus Rg। so V here 10, Ig here 5 milliampere, Rg already 15 ohm। set up the values and you will get answer 1.985 10 raised to 3 ohm। अगर ये आंसर आता है तो, कोई बोले सर मेरा ये आंसर आ जाता है, अगर किसी का भी आंसर आप सोल्व कर रहे हो और अगर आपका ये आंसर आता है, मतलब आपने जाने अनजाने में एक जबरदस्त क्वेश्चन सोल्व कर दिया, JEE मेन 2017। you can see, so most time the question we have discussed JEE main 2017। now we have to think about one more, but first of all think about, we can say that point to point 1 minute। Okay friends, so now we'll think about one more।
सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर एक और सोल्व करते हैं। तो जेडब्ल्यू मेन 2017, देखो आप काफी लोग ये करते हैं कि वो डेंजर न्यूमेरिकल करे, ये करे, बेस बनाओ पहले। जितना आपका बेस इजी उतना जिसे कह सकते हैं कि सब इजी हो रहे। क्वेश्चन का लेवल देखो आप, सब कुछ जिसे कह सकते हैं कि अब आइडियल लेवल रिलेटेड आता है तो भारी भरकम बाद में, पहले बेसिक कांसेप्ट क्लियरेंस वाले न्यूमेरिकल पहले करने हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वन मोर वी वुड लाइक टू सॉल्व इट। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको जिसे कह सकते हैं कि ट्राई करने के लिए देता हूं, जो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ओके, सो दिस इज फॉर होमवर्क। ओके, सो बी रेडी। अ गैलोमीटर हैविंग अ coil of resistance 100 ohm, resistance of coil, or I can write coil resistance 100 ohm, then you can see that, and gives a full scale deflection when current of 1 milliampere is passed, 1 milliampere current, then full scale deflection. Okay, DEF का मतलब समझ लेने का deflection. Okay, next best point. Now if the value of resistance which can convert this galvanometer into ammeter giving a full scale deflection for current of 10 ampere is blank. Question क्या है? We would like to measure maximum 10 ampere current. So अपने को गैल्वेनोमीटर में से एमीटर बनाने का है। लो, so you have to think about ammeter. So what is the required resistance? What is the required resistance is connected with this galvanometer such that we can obtain ammeter which can measure 10 ampere current. चलो, coil resistance 100 ohm, 1 milliampere के लिए full scale deflection, अपने को एमीटर बनाना है जो मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट मेजर कर सके, तो कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़े। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इसका प्रॉब्लम क्या है, बोलो एक क्वेश्चन है मोस्ट टाइम इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन जेडब्ल्यू 2016 यू कैन सी। तो ये बहुत ही रिसेंट लेवल के क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब अपन लोग एक और सॉल्व करते हैं। So all questions are very IMP, सब कुछ जिसे कह सकते हैं कि सोल्व करो आज ही। Now we'll think about one more. So अब जाते हैं जिसे कह सकते हैं कि B ग्रुप रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन B ग्रुप के डिस्कस करते हैं। So most IMP. So question number you can see that very important for you. You have to solve yourself. Okay, चलो। A voltmeter of resistance 20,000 ohm. There is a voltmeter of resistance 20,000. Voltmeter of resistance 20,000. Just a minute. So voltmeter of resistance 20,000 ohm. Okay, reads 5 volt. What is the reading of this voltmeter? 5 volt. Now to make it read 20 volt, what's the, we can say that extra resistance is required. What's the extra resistance is required? This is your question. Very IMP. It is already asked in AIMS 2016. Try करो चलो। ओके फ्रेंड्स, आपने ट्राई की होगी, वीडियो पॉज करके अपन लोग सोल्व करते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर? 20,000 ohm and it is, or it can read up to 5 volt. अब हमें ऐसा वोल्टमीटर हमारे पास है जिसका रेजिस्टेंस 20,000 है और 5 वोल्ट तक वो मेजर कर सकता है। उसकी मेजरिंग कैपेसिटी 5 में से 20 करनी है, तो कितना रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा चाहिए? तो ये भी मैंने शॉर्टकट आपको दिया हुआ है। तो देखो, पहले 5 वोल्ट था, उसमें से 20 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज मेजरिंग जो प्रोसेस है उसकी रेंज कितना गुना बढ़ाना है? कितना गुना बढ़ाना है मतलब 5 से 20 यानी 4 गुना बढ़ाना है। सो टू मेक द रेंज ऑफ वोल्टमीटर n टाइम्स, ये मैंने शॉर्टकट दिया हुआ है। टू मेक
range of voltmeter n times required resistance मतलब series resistance is given by equation Rg multiplied by n minus 1. ये शॉर्टकट याद रखने का most time. What is your Rg? It is 20,000. And what is your n? N here 5 to 20 यानी 4 गुना. So 4 minus 1 3. 20 multiplied by 3 simply 60,000 ohm. भाई इतना करने का 4 मार्क 2016 you can see एम्स. मस्त क्वेश्चन फ्रेंड्स. शॉर्टकट्स का कमाल, ये पूरा मोस्ट टाइम पे. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस. वंस अगेन वी मूव टुवर्ड्स द वन मोर. चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. लास्ट में कुछ क्वेश्चन अपन लोग होमवर्क में देते हैं जो आपको ट्राई करनी है. और ये वीक में जो जेडब्ल्यू नीट है उसमें ज्यादातर इसी सेक्शन पे अपन लोग क्वेश्चन पूछेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर फॉर वन मोर. अब जो क्वेश्चन है वो भी बेस्ट है, सो थिंक अबाउट इट. जस्ट अ मिनट. हाँ ओके चलो. So must question start. A current sensitivity of moving coil galvanometer is current sensitivity of galvanometer is simply given 5 division per milliampere. देखना है न्यूमेरिकल बहुत ही चिकना केस है, जरा संभल के. एंड वोल्टेज sensitivity of galvanometer is given. Don't worry, voltage sensitivity of galvanometer is given. It is 20 division per volt. Then find the resistance of the galvanometer. Find resistance of galvanometer. Try to solve it. Current sensitivity given 5 division per milliampere. Voltage sensitivity given 20 division per volt. And resistance of galvanometer, your task. Start. Okay friends, so now we would like to solve it. आपका आंसर लास्ट में अपन लोग चेक करते हैं. सो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस, ये तीन का तिकड़म आज ही डिस्कस किया. यू नो दैट वेरी वेल. वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस. आज का शॉर्टकट याद करो, शुरुआत मोस्ट आईएमपी. सो दिस इज द धूम इक्वेशन. सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस. So it implies that resistance is equal to current sensitivity upon voltage sensitivity. Now here current sensitivity already given 5 division per milliampere and voltage sensitivity given 20 division per volt. दिखने में बहुत इजी और इजी केसेस लोगों को बिजी कर देते हैं, इसीलिए बी अलर्ट. ये बहुत ही चिकना केस है. देखो सबसे पहले मैं मिली एम्पियर को न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर में. डिवीजन डिवीजन कैंसिल, तो अल्टीमेटली ये बनेगा 5/4 इंटू 1 अपॉन मिली एम्पियर आ गया डिनोमिनेटर में. सो मिली एम्पियर यानी 10⁻³ ये जोरदार केस. और अब इसको जिसे कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई करो तो 5000 डिवाइड बाय 4 यानी कि योर आंसर, सॉरी ये 20 है, देयर इज अ मिस्टेक कि मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया. Okay, 5000 divided by 20. So your answer would be, we can say the 250 ohm. You can see this is your answer 250 ohm. मस्त क्वेश्चन है और मस्त इसलिए क्योंकि ये लेटेस्ट, इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन नीट 2018. सो दोस्तों आप देख सकते हैं सुप्रीम. एक और जिसे कह सकते क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है मगर अपने होमवर्क में. चलो okay friends, so you have to solve yourself, but homework related.
In an ammeter, this is already asking, we can say that NEET मैं बताऊंगा नहीं कौन सा ईयर, बट नीट में क्या, क्योंकि काफी लोग फिर क्या डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं. सो इन एन ammeter, this is you can see that ammeter. In an ammeter, 0.2 percentage of main current, 0.2 percentage of main current passes through galvanometer. If resistance of galvanometer is capital G, then what is the resistance of ammeter? This is your question. You have to solve yourself in your homework or at your home, you can see. तो ये आपको ट्राई करना है, मगर जिसे कह सकते हैं कि घर पे. चलो, तो ये होमवर्क दे रहा हूँ, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ. चलो, इसके जैसा जिसे कह सकते हैं कि एक और क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ. Simply we can say that homework. Next, question number 1. Question number 2. A millivoltmeter of 25 millivoltmeter of 25 millivolt range to be converted into an ammeter. मस्त क्वेश्चन है दोस्तों. 25 मिलीवोल्ट रेंज वाला वोल्ट मीटर है, उसको ए मीटर में कन्वर्ट करना है. एन मीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज. व्हाट्स द क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ necessary shunt, the value of necessary shunt will be blank, or value of required shunt will be blank. Super. दोनों क्वेश्चन में दम है. सो यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. अपन लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं. देखो, अब मैं थोड़े टिपिकल क्वेश्चन और ले जाता हूँ आगे, तो आप ध्यान रखना, सभी वेराइटीज आज ऐसे देखने वाले अपन लोग. अभी 1 2 3 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. सो देयर इज कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. सो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ट्राई करनी है. सो क्वेश्चन क्या है? इफ दिस इज योर क्वेश्चन, इफ only 2% of current, 2% current of total current, only 2% current of total current is allowed to pass through galvanometer. ओके, टोटल करंट का कितना? सिर्फ 2% करंट ही मुझे गैलोमीटर में से पास करवाना हो, देन what should be the value of shunt required? What should be the value of shunt required? Start. Your answer should be required in the form of resistance of galvanometer. अगर मैं पहले आपको देता हूँ, फिर अपन लोग सोल्व करते हैं. Apply your logic. Pause the video and try to solve it. ओके, चलो देखो, 2% करंट ऑफ टोटल करंट का सिर्फ 2% करंट ही मुझे गैलोमीटर में से पास करना है. अब इसका रोल आगे देखो. व्हाट डू यू मीन बाय Ig by I? द टोटल करंट में से I में से गैलोमीटर में से पास करंट करने का, पार्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर, पार्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट. ये शॉर्टकट हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं वो शॉर्टकट अप्लाई करें. सो डायरेक्टली जिसे कह सकते हैं आंसर आए हियर. व्हाट इज द पार्ट ऑफ करंट ऑफ टोटल करंट इज अलाउड टू पास थ्रू गैलोमीटर? सो हियर Ig by I, इट इज 2%. ये 2% है. देखो, दिस इज, यू कैन सी द 2%. सो 2/100, इट मींस 1/50. तो अब अपन लोग जानते हैं हियर Ig by I इज इक्वल टू, याद करने का फंडा मैंने दिया. इधर गैलोमीटर आए तो इधर आपको लेना है शंट, Rs अपॉन Rg प्लस Rs. बट Ig by I ऑलरेडी 1/50. Rs योर टारगेट,
RG already not given but you will answer in the form of RG, don't worry. अब इसको आपको सोल्व करना है, so obviously cross multiplication RG plus RS is equal to 50 RS, so RG is equal to simply 49 RS. मगर RS आपका टारगेट है, so required shunt RS it is RG by 49. सुपर, सीधा आंसर देखो। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा एक और करवाता हूँ ताकि और पता चले। सो नाउ बी अलर्ट, टोटल करंट वाले क्वेश्चन थोड़े हटके होंगे, डोंट फॉरगेट, तो इसलिए जरा देखना किसमें से पास करने की बात बताई। इसमें गैलोमीटर बोला था इसलिए आईजी बाय है। एक और मैं ऐसा बताता हूँ, इफ ओनली, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओनली 0.5% of total current is passing through galvanometer, then calculate, देखो क्वेश्चन बराबर देखना, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर। सुपर क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट। If only 0.5% of total current passing through galvanometer, then what is the resistance of a meter? Apply your logic. ओके फ्रेंड्स, तो मैंने कितनी बार बोला है कि आपको वीडियो पॉज करके सोल्व करना है। आपने सोल्व किया होगा और लास्ट में आंसर चेक करते हैं कि कितना आंसर आता है। हियर 0.5% ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर, सो दिस 0.5% इज नथिंग बट इट इज Ig by I 0.5%, सो 0.5 upon 100 यानी कि ऑब्वियसली 5/1000 एवा में Ig by I। तो टोटल करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर इज गिवन, then calculate the resistance of a meter। देखो मैंने शॉर्टकट इधर लिखा है, resistance of a meter it is Ig by I multiply by Rg। तो सीधा शॉर्टकट, resistance of a meter is equal to Ig multiply by Rg divide by I। शॉर्टकट कमाल का। तो Ig by I already with us, what is your Ig by I? Ig by I already 5/1000 multiply by Rg, so 5/1000 यानी कि Rg upon 200 इतना करने का है। सुपर, ये आंसर आ गया। मार्वेलस क्वेश्चन, यू कैन सी। बाकी इसका ये फॉर्मूला अप्लाई करने में दम निकल जाए, अगर ये शॉर्टकट का कमाल देखो दोस्तों, फटाक से जिसे कह सकते हैं आंसर आ जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस। ओके, एक और क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूँ जो बेस्ट है, तो अपन लोग वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कोई टेंशन होना चाहिए नहीं। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन कन्वर्ट करके बताता हूँ। ओके, आई थिंक इट इज आस्किंग रूल की समथिंग। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, सो मेरे पास एक पेपर सेट है तो अपन लोग देख लेते हैं। ओके, देखो एक क्वेश्चन है, उसमें मैं देने जा रहा हूँ आपको क्या करना है। इंपॉर्टेंट चीज है डिवीजन रिलेटेड, तो जरा देखना है। एक क्वेश्चन में इधर करवाता हूँ, इसका एक पार्ट मैं करवाता हूँ, दूसरा पार्ट आपको होमवर्क में करना। चलो, तो ये मस्त क्वेश्चन है, इसको डेटा देख के कुछ स्टूडेंट छोड़ देते हैं, सो बी अलर्ट। तो मैं डेटा रीड करके इधर सोल्व करवाता हूँ। देखो, अ गैलोमीटर हैविंग 30 डिविजन्स, देखो गैलोमीटर का स्केल है, इधर से 30 डिविजन्स है टोटल, 0 to 30, रेडी। सो टोटल 0 to 30 डिविजन्स हैज अ करंट सेंसिटिविटी of 20 माइक्रोएम्पियर पर डिवीजन, यानी कि पर डिवीजन 20 माइक्रोएम्पियर डिफ्लेक्ट होता है, बराबर। इफ इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm, resistance of galvanometer you know that it is Rg 20 ohm, then what's the question, how will you convert it into ammeter
ए मीटर मेजरिंग करंट 1 एम्पियर, मुझे ए मीटर बनाना है और वो भी मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट मेजर कर सके ऐसा. सो वी नो दैट टू कन्वर्ट गैलोमीटर इन द फॉर्म ऑफ ए मीटर वी हैव टू कनेक्ट शंट. तो ये आपका गैल्वेनोमीटर, उसके साथ शंट कनेक्ट करना पड़े. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिक्वायर्ड शंट? सो रिक्वायर्ड शंट RS is equal to resistance of galvanometer Rg multiplied by current measuring capacity. ये आ गया. अब इस इक्वेशन में एक लोचे Ig के देखो, इसलिए लोग Ig में प्रॉब्लम करेंगे. Ig अपन लोग कैसे पता चले? देखो, एक डिवीजन, ये रहा एक डिवीजन डिफ्लेक्शन कब होगा? जब 20 माइक्रो एम्पियर करंट पास करोगे. इफ यू पास 20 माइक्रो एम्पियर करंट थ्रू दिस गैलोमीटर then it is deflected by one division. अगर 40 माइक्रो एम्पियर कराओगे तो दूसरे पे आएगा, 60 पे तीसरे पे, 80 पे चौथे पे, 100 पे 5, इस तरह. तो अपने को Ig का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Ig? Ig दैट मींस द वैल्यू ऑफ करंट फॉर व्हिच गैलोमीटर शोस फुल स्केल डिफ्लेक्शन. तो हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाहिए, यानी 0 to 30. तो ऐसी सिचुएशन में कितना करंट पास करवाना चाहिए? तो अपन लोग तो जानते हैं 30 डिवीजन है, 1 डिवीजन के लिए 20, सो फॉर 30 के लिए कितना? सो इट इज वेरी IMP. सो वी कैन इजीली फाइंड करंट मेजरिंग कैपेसिटी फॉर 1 डिवीजन 20, सो फॉर 30 डिवीजन कितना? सो इट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट मींस 600 माइक्रो एम्पियर. ये बन गया आपका करंट मेजरिंग कैपेसिटी. ऐसे न्यूमेरिकल में लोग करंट मेजरिंग कैपेसिटी डायरेक्ट नहीं देंगे, तो आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करके Ig फाइंड करना है. अब Rg की वैल्यू हमारे पास है, Ig भी है. Rg में रख रहा हूँ सिंपली, इट इज गिवन 20 मल्टीप्लाइड बाय Ig 600 into 10⁻⁻⁶. I यानी मैक्सिमम कितना करंट मेजर करना है? 1 एम्पियर. Ig हमें पता है 600 into 10⁻⁻⁶. If you simplify then RS would be, we can say that 0.15 ohm. इतने ओम का रेजिस्टर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना पड़े तो ये गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाए. मगर इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वो आपको होमवर्क में करना है. अभी आपके पास गैल्वेनोमीटर है, सब कुछ यही कैरेक्टरिस्टिक, रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट सेंसिटिविटी 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन. अब मुझे बनाना है वोल्ट मीटर. आई वुड लाइक टू ऑब्टेन वोल्ट मीटर व्हिच कैन मेजर 1 वोल्ट मैक्सिमम. तो आपको जिसे कह सकते हैं कि 1 वोल्ट मेजर कर सके ऐसा वोल्ट मीटर बनाना हो तो किस तरह बनाओगे, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में. दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क, वी कैन से दैट इन रूरकी, मोस्ट IMP. तो ये आपको वोल्ट मीटर के लिए देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट. रेडी? सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस maximum, you can see the questions in such a way that each and every category can be, we can say, the covered. इतने क्वेश्चन सोल्व करो, प्लस जो मैंने दिया होमवर्क में वो सोल्व करो, और फिर अपन लोग पेपर थ्रू तो डिस्कस करेंगे अलग. अपन लोग जानते हैं पेपर फाइनल होता है बहुत ही बेस्ट, वो सोल्व कर दो मतलब पूरा. तो ये हमने देखा है. बट इस चैप्टर का ये देखो तो थ्योरेटिकल सेक्शन तो मोस्ट ऑफ हमने कंप्लीट कर दिया है. 2 थियरीज बाकी जो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर कुछ JEE नीट के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा जो मैंने होमवर्क में दिए थे, और कुछ टिपिकल क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स की डिमांड है कि वो एक बार सोल्व करवाओ, तो अपन लोग वो भी सोल्व करेंगे और फिर देखेंगे कौन सा चैप्टर में जाना है, किस तरह जाना है. सो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन टुडे वी हैव डन. डू वी कैन से दैट टू रिवाइज ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल और सेक्शन very carefully and submit, we can say that, as a homework. Thanks.